ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਟ ਅੰਟਿਲ ਰਿਟਾਇਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਅੰਟਿਲ ਰਿਟਾਇਰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਰਿਪੀਟ ਅੰਟਿਲ ਰਿਟਾਇਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇਊਗੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਜੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ OSD ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਬੀਜ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜ ਉਦੋਂ ਤੋਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਮੈਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ 30-30,000 40-40,000 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਅੰਡਾਨੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 19 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਿਰਫ 15-16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੋਂ MSP ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਨ ਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ FCI ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 400 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ PGI ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਹੈਲਥ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ MP ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਹੁਣ,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NRC ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? GST ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, 3 ਸਾਈਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਅਡਾਨੀ ਦੇ, 18 ਦਾ ਹੋਰ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ। 4,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗਈ। 4% ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ। ਤੇ 1434 ਖਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 30,000 ਆੜਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1,616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੁਨੀਮ, ਲੇਬਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਾਮੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਹੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਉਣਗੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਫਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਲਾ ਲਓ, ਜੀਓ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਰੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀਓ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 8.5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆੜਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨੇ 8.5% ਬਣਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1% ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ 1% ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7.5% ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 1% ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, 1 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ 8.5% ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 7.5% ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 125 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ MSP ਤੋਂ 100 ਜਾਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹੂਗਾ ਕਿਉਂ, ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। BJP ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂ। ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਗਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ 1850 ਰੁਪਏ ਜੀ, ਨਹੀਂ 1750 ਰੁਪਏ ਮੱਕੀ ਦੀ MSP। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਮੰਨੀ। ਖੰਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਨਹੀਂ MSP ਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 250 ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਖੰਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ
1111 रुपए क्विंटल बेची गई, 639 रुपये MSP तो घट। बिल्कुल इसे तरह कणक ते झोने नाल होया करूगा, क्योंकि वो कहंदे साडियां मध्य प्रदेश दियां, छत्तीसगढ़ दियां, साडियां उड़ीसा दियां जमीनां चल पियां, असीं हुण पंजाब तो झोना नहीं खरीदना, बीजना बीजो, नहीं बीजना ना बीजो, यानी कि सेंट्रल पूल नूं हुण कोई लोड़ नहीं पंजाब हरियाणे दे झोने दी अनाज दी। बिल्कुल जिवें किसी बलद नूं वाह के वो तो कम लैके वाही करते, जो मौला हो जाता उदों छड्ड दिंदे ने। बिल्कुल पंजाब नूं निचोड़ के नींबू वांगू हुण सुੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ है। ਤਿਆਰੀ की सुੱਟता साडी धरती चों पानी खत्म हो गया, असी रेगिस्तान बनने की कगार ते आ गए, ठीक है जी। ते हुण साडीआं फसलां नूं खरीदण तो मुकरनगे, ते इहदे विच जिन्ना केंद्र जिम्मेवार है उन्ना ही कांग्रेस जिम्मेवार है ते अकाली दल जिम्मेवार है। सो इहदा इह स्टैंड स्पष्ट करन अज असीं तुहाडे नाल इस विषय ते गल करन आए हां। ते एक जिहड़ा ਜਿਹੜਾ मैं पहला भी पिछली बार भी ये कहा सीगा कि हुण क्लस्टर बनणगे, कि तुहानूं कहा जाऊगा कि तुहाडी 25 किੱਲੇ है जी, लिओ जी आ करो साइन, लीज है जी आह ते इन्नी डिसाइड करती, इन्ने परसेंटेज हर साल वाधा हो जा करूगा, करो जी 31 साल दे, 41 साल दे, 51 साल दे साडे नाल एग्रीमेंट, ते तुसीं चलो। जिहड़ा मुजाहरा सिस्टम हुंदा सी पहलां वाला वो वापस आऊगा। ये जिहड़ा इन्हां ने कीता ना शक्तिकरण ते सुरक्षा, जिहड़ी है वो शक्तिकरण ते सुरक्षा वड्डे घराणिਆਂ ਨੂੰ है जी, और किसी ਨੂੰ नहीं, क्योंकि वो तो अपने बड़े बड़े, क्योंकि हुण इन्हां ने वो तो बंद करता कि तुसीं भंडार कर सकते हो, जरूरी वस्तां चों अनाज नूं ते इहनूं कढता, अनाज ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ डिस्कवरी चैनलों ते शिकार शेर मारदा है, थोड़े चिर बाद लक्कड़ वगे आ जाते हैं, वो शेर जिहड़ा थोड़ी दूर बैठा देखी जाता हुंदा यार मैं मारिया सी, तो खो लैंदे ने। हुण तो साडी पंजाब दी खेती जिहड़ी सी थोड़ी बहुत सहकदी सी, वो भी हुण ये खोण लगे ने, सेंटर दे हत्थ देण लगे ने। हालांकि कैप्टन साहब ने तो विरोध किया कल कि यह राजां दे अधिकारां ते डाका है, पर आप ही फिर बिजली का जिहड़ा वो है अमेंडमेंट है, आप ही वो वास्ते हाँ कर रहे हैं। तो सब आपस दे विच रले हुए ने। रिपीट अंटिल रिटायर ये फार्मूला है, तो पंजाब नूं इहदे विच लुटिया जा रहा है। तो जे तुहाडे कोल कोई होर सवाल है कोई इस विषय की, वेलकम। अपने मान साहब हमेशा जिहड़ियां सरकारां वा ऑर्डीनेंस उदों लैके आंदियां पास करो जो बहुत वड्डी देश अंदर या स्टेट अंदर एमरजेंसी वेले ऑर्डीनेंस। मोदी सरकार की एमरजेंसी दिखी जी? देखो इन्हां नूं हिन मौका मिल गया करोना के मोढे ते धर के बंदूक चलाउण दा। नेपाल की पार्लीमेंट चल रही है जी, होर बहुत सारे यूरोपी मुल्कां की पार्लीमेंट चल रही है जी, जिन्हां तो सानूं ये वधिया कहंदे ने कि असीं उन्हां नालों करोना ते वध कंट्रोल कीता होया। ते पंजाब अपने देश के भी ट्रेनां चलातियां, इंटरनेशनल फ्लाइटां भी शुरू होने लगियां ने, मॉल खोलते, ठीक है जी, रेस्टोरेंटां ते गाइडलाइन दे के खोलण लगे ने, सलून खोलते, तो फिर पार्लीमेंट क्यों नहीं चल सकती जी? ये पार्लीमेंट च बिल आउंदा ना, क्योंकि पार्लीमेंट च रौला पैंदा, फिर पार्लीमेंट च विरोधी धिरां नूं साडे वर्गिआं नूं बोलण दा मौका मिलदा, हो सकदा राज सभा च पास ना हुंदा। तां फिर इन्हां नूं हुण मौका मिल गया है करोना की आड़ दे विच, ये आफत में आपदा में से अवसर ढूंढ रहे हैं। मोदी साहब ने 2-3 बारी जो आए ने, हूँ तो खैर हट गए, उन्होंने पता भी हूँ करोना तो कंट्रोल तो बाहर हो गया, हूँ मैं ये निकल जा, हूँ तो मंत्री आते हैं। उदों जो तालियां थालियां बजवा आते सी, उदों कहते सी आपदा में से अफसर ढूंढिए। वो आपदा चो अफसर सरकार ढूंढ रही है। किवें उद्योगपतियों के हत्थ दे विच मुल्क देता आपां नूं करोना नालों भी ज़्यादा वड्डी महामारी का फ्यूचर सामना करना पऊ। करोना तो 100 साल बाद आया, ये तो कई 100 सालों का जिहड़ा सानूं जिहड़ा ये स्यापा पाउण लगे है। सो ऑर्डीनेंस सरकार है, तुसीं बिल्कुल सही कहा जगतार जी कि एमरजेंसी वेले ऑर्डीनेंस आउंदे ने, जो कोई संविधानिक संस्थावां चलदियां ने, क्यों नहीं ये मॉनसून सैशन शुरू कर लेंदे, भावें उहदी गाइडलाइन दे दो,
ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਧੇ MP ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅੱਧੇ 2 ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਪਾਸ ਇਹ। 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਕੇਜ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ CBI ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि एमरजेंसी वर्गे हालात नजर आ रहे हैं, तो वो एमरजेंसी आती है। मान साहब आज ऑपरेशन पूछताछ की बात जो ठेकेदार है उन्होंने बोला कि अगर खालिस्तान बन जाए या मिल जाए सरकार समर्थन तो उन्होंने डायरेक्टिव किया है। अकाली दल कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, गलत मतलब निकाला जा रहा है। आपका क्या स्टैंड है इस सारे मामले में? देखिए, सबसे पहले तो जो ब्लू स्टार है वो एक ऐसा जख्म है जो जिसको सदियां भी नहीं भरेंगी, वो जख्म नहीं भर पाएगा। बहुत लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब इंतहा थी। वो एक ऐसा धब्बा है जो कांग्रेस के माथे से कभी मिटेगा नहीं। नंबर 2 पे सेकुलर पार्टी हमारी, हम हर धर्म का सत्कार करते हैं। अकाली दल धर्म की राजनीति करता है। जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो वो एकदम से धार्मिक पार्टी बन जाते हैं, ऐसे मुद्दे लेके आते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो सेकुलर बन जाते हैं। अकाली दल और बीजेपी इकट्ठे, ये किसी से बात लुकी नहीं हुई, किसी से छुपी नहीं हुई कि जथेदार जो है उसके फैसले जो हैं वो किसकी जेब से निकलते हैं। और श्रोमणी कमेटी के प्रधान उस समय मौजूद भी थे जब उन्होंने ये बात की। तो देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जथेदार साहब ने ये बात कही तो अकाली दल अपना स्टैंड स्पष्ट करे और बीजेपी अब बताए कि अब वो उनके साथ चलेगी। पंजाब ने बहुत काले दिन देखे हैं, मतलब अभी तक जख्म नहीं भरे हैं, बहुत मतलब खून खराबा यहाँ पे हुआ है, लेकिन कोई भी धर्म जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। तो हम तो सेकुलर पार्टी, हम तो हर धर्म का स्वीकार करते हैं। हम नहीं चाहते कि धर्म और राजनीति इकट्ठे चलें। धर्म को धर्म के जो जानकार हैं, जो धर्म के ज्ञानी हैं, वो चलाएं, और राजनीति को जो राजनीति के ज्ञानी हैं वो चलाएं। इन्होंने क्या किया, धर्म वालों को राजनीति में ले आते, राजनीति धर्म में चली जाती, दोनों जगह मतलब खालिस्तान पे जो स्टेटमेंट आया है जत्थेदार का, किसी ने भी इसको सपोर्ट कर दिया, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। अकाली दल पर और कौन सा है? अकाली दल ऐसे करता है, जैसे ही वो सरकार से बाहर होते हैं तभी कहते हैं कि खतरा है, खतरा। वो पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, बीजेपी भी यही करती है। तो इन दोनों की अब ये दोनों स्टैंड स्पष्ट करें। हम तो ना तो हम SGPC को चुनाव लड़ते हैं, ना ही कोई हमारा उससे कोई संबंध है, तो वो स्टैंड स्पष्ट करें। मतलब दोनों जने की स्टेटमेंट यही थी, जथेदार की स्टेटमेंट यही थी, SGPC के प्रधान की स्टेटमेंट यही थी, जे दे देंगे तो ले लवांगे। तो लगदा भी जेडी हुकूमत है गई ऐसे में देण दे आपके हैं आ किहड़ियां मैं बोलियां ने जी, इन्हां च ही बचा लीए कुछ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ बनाते। वो कहते थे ना कि पंजाब पूरे देश का पेट पालता था, आज पंजाब खुद का पेट पालने के लिए सेंटर की तरफ देख रहा है। तो ये कौन सी बातें कर रहे हैं इस समय? हमारा युवा जो है, हमारा यूथ जो है, वो आईलेट्स करके बाहर की तरफ भाग रहा है, ठीक है जी, और पेरेंट्स उनके पीछे जा रहे हैं। जहाज़ों के जहाज, अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा फ्लाइट्स रुक गई, वरना अब तक तो कितने यूथ और भी चला गया होता। तो हम अपने यूथ को तो संभाल लें पहले, हमारी नस्लें और फसलें संभाल लें पहले। मास्टर सरबीर सिंह बादल कहते कि खेती के मसले 'ਚ बहुत ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। दे ਦਿੱਤੀ है जी, पंजाब की कुर्बानी दी उन्होंने। जे खेती के मसले 'ਚ कुर्बानी देनी सी तो हरसिमरत कौर की कुर्सी की कुर्बानी दो ना। हाँ जी, हाँ जी, नूह राणी जी बादल साहब की जो खेती के मसीहे की नूह है, किसानों के मसीहे की नूह, ਉਹਦੀ कुर्बानी दो ना, ਉਹਦੇ ਦੀ। एक कुर्सी खातर पंजाब के सारे हक, मैं पहला भी हर रोज कहना, एक कुर्सी खातर पंजाब के सारे हक दाते ला रखे ने बादल परिवार ने। ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ दसो जी, की कुर्बानी? पंजाब के किसानों की कुर्बानी देती। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਉਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। मान साहब नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में स्पष्ट कीजिए सर, क्योंकि काफी चर्चाएं हैं कि एक बार फिर से संपर्क कर रहे देखिए हैं। हमने तो ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया, पिछले 2-3 दिन से खबर चलती है कि देखिए हमारे ना तो किसी दिल्ली में किसी के साथ उनका संपर्क हुआ, हमारे नेता सीएम साहब ने भी बोल दिया है, ठीक है, ना ही हमारे साथ किसी से उनका संपर्क हुआ, या प्रशांत किशोर का या नवजोत सिंह। ये तो सिद्धू साहब स्पष्ट करें ना कि किधर जाना है। हर तीसरे महीने निकल आता है, मतलब सिद्धू साहब से पूछिए ना आप कहाँ हैं वो। चलो अगर आपसे बात नहीं करते तो जो उनका जीतेगा पंजाब वाला पेज है, जो सबसे तो ये है कि हाँ आप पूछते हो कि अगर वो आते हैं, हम तो ये कहते हैं कि जो भी पंजाब के जो हित हैं उनको लेके अपने पर्सनल या हमारे निजी जो स्वार्थ हैं वो बहुत छोटे हैं, जो पंजाब के स्वार्थ को लेकर आता है हम तो उसका वेलकम करेंगे। मान साहब हले तक कोई गलबात नहीं हुई नवजोत सिद्धू ना दिल्ली ना उत्थे आपका सूरा छोड़ देते। हाँ पता नहीं मतलब जब मई में रिजल्ट आया था मैं जीता था, 3 महीने मुझसे ये नहीं पूछा किसी पत्रकार ने कि जी कैसे जीते, बड़ी जीत हुई, सिर्फ यही पूछते नवजोत सिद्धू आएंगे सीएम का चेहरा होंगे। सर ये छोटे मुद्दे हैं पंजाब के नहीं, ऐसी कोई शर्त कोई रखे तो पार्टी, आपको लगता है कि ऐसी शर्तों पे आप लोग उसको शर्त करेगी जो सीएमशिप का चेहरा। देखो पहली बात तो पंजाब वास्ते जे कोई बिना शर्त कोई अपने निजी स्वार्थ छड्ड के आना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 17 ਦੀ ਬਜਾਏ 22 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ? ਦੇਖੋ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਏ ਬੈਠੂਗੀ, ਇਹ ਹਜੇ ਟੂ ਅਰਲੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਜੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਗਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਗੱਟੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਧਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ SIT ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। तो ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ जुर्म होगा ਅਸੀਂ जावांगे। मतलब गद्दर पे आप कल गए थे, वीडियो आपका सामने सोशल मीडिया पर, तो वहाँ पर किसान पिछले साल जो तबाही हुई थी हमने पूरा सब नेशनल चैनल्स में पंजाब के मीडिया में उसको दिखाया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार जारी नहीं है, किसान 200 रुपये पर एकड़ खरीद के खुद ही वहाँ मरम्मत कर रहे हैं, तो क्या स्थिति आपको वहाँ पर लगी और क्या सरकार को कोई सुविधा है वहाँ? देखिए मैंने 10 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर से बात की कि मतलब मानसून टाइम पे मतलब जुलाई 15 के बाद घग्गर में पानी आएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 10 साल बाद आएगा या 10 साल बाद एक बार आता है, हर साल घग्गर में बाढ़ आती है। और उस समय फिर जो तैयारियां की जाती हैं, या उस समय मुआवजा की बात की, JCB नहीं मिल रही जी, ये जो बोरे हैं वो नहीं मिल रहे बांध पे लगाने के लिए। मैंने कहा अभी क्यों नहीं तैयारी करते हम, अभी क्यों नहीं उन बांधों को उन किनारों को मजबूत किया जाता जहाँ पिछली बार वो टूटता है। तो कहते जी हम कर रहे हैं जी, हमने पैसा मांगा है, पैसा आ रहा है। तो कल मैं वहाँ पे गया, एक्सियन इरिगेशन एक्सियन ड्रेनेज वो आए थे, हमने कहा जी इसके लिए पैसा आया। लोग कह रहे हैं हम तो 200 रुपये पर एकड़ अपना इकट्ठा करके काम कर रहे हैं और चल भी रहे हैं इस वक्त, JCB और ट्रैक्टर लोगों के चल रहे हैं। कहते जी आप काम कर दो, 10 दिन बाद यहाँ पे धान की बुआई शुरू हो जाएगी, तब यहाँ ट्रैक्टर भी नहीं चलेंगे, कहीं से मिट्टी भी नहीं मिलेगी आपको। तो मैंने कहा जी, मैंने ADC साहब से पूछा जी, DC साहब से पूछा जी, जो 2 करोड़ 86 लाख रुपया बाढ़ की रोकथाम के लिए, साफ सफाई के लिए नदियाँ नालों की जो संगरूर में आया है, उसमें घग्गर शामिल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, उसमें घग्गर शामिल नहीं।
घग्गर को वो मतलब बाढ़ घग्गर के लिए स्पेशल बजट बनाते हैं। घग्गर के लिए 2,47,00,000 का अलग से बजट बना के भेजा हुआ है। वो अभी एस्टिमेट लगा के दिया है जी, चीफ सेक्रेटरी के पास पड़ा है, चीफ सेक्रेटरी के पास। मैंने कहा जी केरल क्रॉस कर गई है मानसून, वो वेट नहीं करेगी कि पंजाब सरकार ने अभी घग्गर का एस्टिमेट नहीं बनाया तो मैं रुक जाऊँ 10 दिन। मैं MP लेड से परसों मीटिंग रखी है, मूनक के SDM के साथ, DC से बात करके पंचायतों के साथ मैं बात करूंगा। पंचायत कह रहे जी हमें इनसे 10 गुना ज़्यादा का कम पैसे दे दीजिए, 10 गुना, हम अपने तरफ से बांध बना लेंगे, हमें इनके बांध पर यकीन नहीं है। अभी क्या हो रहा है, लोगों के खर्चे पे 2,000 रुपया पर आवर पे JCB चल रही है वहां पे, कल देख के आया हूं। उन JCB की फोटो खींच रही है गवर्नमेंट, जो प्रशासन है, और उनको अखबार में देकर ये कहा जा रहा है कि जंगी पद्धर से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है वहां पे, और कर लोग रहे हैं वो। अगर जंग लग गई, अगर युद्ध हो गया तो ये ऐसे करेंगे कि लोग मतलब लोगों के जो साधन है मैं मेरे पास MP लेड के पास, जो वैसे तो मोदी सरकार ने हमारा बंद कर दिया अगले 2 साल, पर मेरे पिछले MP लेड का मेरे पास पैसा पड़ा, तो मैंने उनको कहा कि मैं जारी कर दूंगा। डिप्टी कमिश्नर जी को कहा कि आप रेड क्रॉस से या इधर उधर से कर लो, जितनी देर इनका एस्टिमेट नहीं बनता हम जारी कर, लेकिन काम नहीं रुकने देंगे हम, JCB चल रही है। मैं अपने MP लेड से करूँ। मान साहब, चाइना बॉर्डर पे आज इंडिया और चाइना की बातचीत चल रही है। दूसरा सवाल ये होता है, क्या विदेश नीति भारत की फेल हुई है? नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, जो नेबरिंग कंट्रीज है, कहीं ना कहीं वहाँ से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो कहीं अच्छे संकेत। बिल्कुल बिल्कुल, जो फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी है कि हम अपने छोटे छोटे पड़ोसी भी हमें आँख दिखाते हैं। बांग्लादेश का टका हमारे से ऊपर चला गया रुपये से, तो हम इकोनॉमिकली भी और वैसे भी हम जो क्योंकि देखो जो उसने बयान दिया है, क्या नाम है उसका, बजाज, उसने क्या कहा था कि कोरोना के समय हमें वेस्ट की तरफ देखने की बजाय एशिया की तरफ देखना चाहिए था, कि हम छोटे छोटे देशों ने कैसे कंट्रोल किया उनका। आज हमारा ये कोई नहीं बता रहा यार, 6ठे नंबर पर आ गए आज, इटली को बीट कर दिया, 2,36,000 से ऊपर हो गए। अगला नंबर 287 वाले का है, ठीक है जी। में जो 9,000 10,000 की एवरेज हो गई है, 10 दिन में हम दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। और ये कह रहे हैं कंट्रोल हो गया जी, तालियों से कहाँ हो गया। 18 दिन कहते महाभारत का युद्ध चला था, मोदी जी ने कहा था वाराणसी जाके, और इसके लिए मुझे 21 दिन दे दो कोरोना के लिए, तो कहाँ गए। तो मतलब सब ये जुमलेबाजी चल रही है, और लूटने की जो ऐसी जो 20 लाख करोड़ के और ये ऑर्डिनेंस आ रहे हैं कि जो सांस बच रहा है थोड़ा बहुत गरीब में। हमने देखा है 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। वो एटलस कंपनी बंद हो गई, जो HMT घड़ी, वो जो आज़ादी के बाद सबसे बड़े हमारे ब्रांड थे HMT एटलस, दोनों बंद जी। लोग जो हैं वो साइकिलों पर अभी भी, वो लड़की गुड़गांव से जो अपने गांव तक कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने पिता को लेके गई। ये हमारा भारत है आज, तो दुखदायक है, शर्मनाक है। एक बड़ा रूमर है पिछले कई दिनों से, मैं चाहूँगा आप पंजाब तो प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि जिस तरह दिल्ली में उन्होंने कैंपेन किया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे, तो पंजाब में भी उनसे कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी बनवाई जाए। तो क्या ये सही बात है या ऐसी बातचीत चल रही है, इस पर अगर आप बता पाएँ। नहीं, अभी तक हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं गया उनके पास, कोई ऐसा प्रस्ताव, ना ही दिल्ली ने हमसे, दिल्ली सरकार ने या दिल्ली की हमारी PAC ने हमसे ये पूछा है कोई ऐसा प्रस्ताव। आप पर्सनली चाहते हैं कि इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाए उनको दिल्ली में अच्छे रिजल्ट? ये तो टाइम बताएगा। पहले कैप्टन साहब ने अपने 55 MLA से यहाँ गवार किया है, अब बाकी 35 ने पता नहीं क्यों नहीं की, तो ये तो बाद में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर